साउंड वेव नाम का चैप्टर हुआ था, रिमेंबर एवरीवन? In sound wave chapter, we already discussed about the oscillation chapter, oscillation topic. First topic is our oscillation. Oscillation का कोई मतलब बताएगा मुझे? Let me know what you mean by the oscillation, everyone. Unmute करो and let me know the definition of oscillation, everyone. Theoretically है, वीडियो देखने की जरूरत नहीं है guys. The motion of a particle is known as oscillation. Repeat it again. That motion of a particle a regular continuation is called oscillation. Who is Mohan Gupta? Mohan, let me know the definition of oscillation. मोहन गुप्ता, आपको समझ में आ रहा है आप कहाँ पे हो? हाँ, let me know the definition of oscillation. Mohan Gupta. ऑसिलेशन के बारे में पहले भी बता चुका हूं मैं आप लोगों को. गाइस मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं. Pendulum, remember? Here we having a one rigid body and we are having a one string over here, and at the end of the string we put the one bob over there. Suppose here we are having a 2 point, that is the right hand side where we put the P, and the left hand side where we put the Q. Suppose we took that pendulum at the right hand side from point P, and if we release from here, तो ये यहाँ से Q तक ट्रैवल करेगा और Q से वापस P तक आ जाएगा. तो गाइस इस स्टेप को हम लोग ऑसिलेशन कहते हैं. द मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल अगेन एंड अगेन, वन सच सेट ऑफ द मूवमेंट इज नोन एज द ऑसिलेशन. आवाज आ रही है तो मेरी? जी सर. आई रिपीट एवरीवन, मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल अगेन एंड अगेन, वन सच सेट ऑफ द मूवमेंट इज नोन एज द ऑसिलेशन. ये सिर्फ और सिर्फ ऑसिलेशन का मीनिंग था गाइस, याद रखना. स्क्रीन दिख रहा है मेरा सब लोगों को? नो सर. वेट, सॉरी, स्क्रीन नहीं दिख रहा मेरा? No, sir. नहीं सर, can you try to share it again? वेट, संकेत, आई थिंक मैं शेयर नहीं कर सकता बिकॉज आई एम नॉट अ होस्ट ओवर हियर. Sir, but I've allowed you the permission from here. I've given the permission to share it. ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है मुझे. So I Share can करने make you the host if you want, but then you'd have to control all the aspects of the meeting. Should I make you the host, sir? यस यस. Okay.
because I didn't show the any option over here. Okay, I've made you host, so now you can try. संकेत आपको कहीं पे दिख रहा है क्या, मतलब स्क्रीन शेयर का ऑप्शन? मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे. So bottom of the screen पे चार्ट के बगल में और पॉज के बगल में है. पांच पॉइंट शो किए हुए हैं यहाँ पे. म्यूट, स्टार्ट वीडियो, शेयर. और शेयर में डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, स्क्रीन नहीं शो कर रहा है. So are you using a phone or a laptop? Sorry, Are you I'm using using a the phone. I'm using the phone. Okay. So I think that share should do it. That share is about share screen only. No, that is the share, whiteboard, bookmark, web URL, documents, photo, Google Drive, Microsoft. Yes, sir. It's a Okay. document, right? Sorry, The file that you're trying to open is a document, right? it's not document. That is a notepad. It's a notepad. हाँ, screen share आता है, but today it's not showing. Okay, guys, listen everyone. आज पहले theoretical part कर लेते हैं, उसके बाद मैं देखता हूँ क्या इसके अंदर का conditions है. कुछ theoretical points कर लेते हैं ताकि आप लोग कम से कम theory clear रहे एटलीस्ट आप लोगों की. Oscillation, guys. Oscillation, the movement of a particle again and again. And let me know everyone, मेरी voice clear है या नहीं, आप लोगों को सुन रहा है या नहीं. Oscillation, the movement of a particle again and again. One such set of the movement is known as the oscillation. Second, after the oscillation, remember it guys, ऑसिलेशन का जो कंडीशन है, अगर हम लोग पेंडुलम को एक राइट हैंड साइड से रिलीज करते हैं तो ट्रैवल करके वो वापस उसी प्लेस पे पहुंचेगा. दैट इज कॉल्ड एज द ऑसिलेशन. एंड आफ्टर द ऑसिलेशन वी हैव द पीरियोडिक मोशन. याद रखना, ऑसिलेशन का पार्ट बस उतना ही था, अपना मूवमेंट वो रिपीट करता है. मूवमेंट रिपीट करने के बाद वो अपने एक सेम जगह पे आ जाता है. आफ्टर दैट वी हैविंग द पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन का मतलब बताया हुए सारे पॉइंट्स ये. What do you mean by the periodic motion, everyone? Sir, it itself in equal interval of time. वापस बोलो. That repeats itself in equal intervals of time. It's called That is periodic. known, yes, that is known as the periodic motion. बाकियों को सुनाई दे रहा है? हाँ. Guys, यहाँ पे periodic motion का मतलब है exactly oscillation परफॉर्म होने के बाद, मतलब पार्टिकल अपने मूवमेंट को जब रिपीट कर लेता है तो वहां पे नेक्स्ट एक टॉपिक जनरेट होता है जो ऑसिलेशन का ही एक पार्ट है. दैट इज द पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन का मतलब है the particle which is repeat itself after an equal interval of time. अगर जो पेंडुलम है वह अपने आप को सेम टाइम पे रिपीट नहीं करेगा तो वो ऑसिलेशन नहीं होगा. याद रखना है बात. ऑसिलेशन में अगर ये बात बोल दी है मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल अगेन एंड अगेन, तो इसका ये मतलब नहीं हो गया कि वो ऑसिलेशन है. उसका टाइम सेम होना चाहिए. टाइम सेम होगा तो ही जाकर उसे हम लोग पीरियोडिक मोशन कहेंगे. इज दैट क्लियर एवरीवन? पीरियोडिक मोशन का मतलब है द पार्टिकल विच रिपीट्स इटसेल्फ. तो जहां पर भी कोई भी पार्टिकल अपने आप को सेम टाइम पे रिपीट करता है उसे हम लोग पीरियोडिक मोशन ही कहते हैं. एंड आफ्टर द पीरियोडिक मोशन, that is the two type, that periodic motion which is having a two type. Sorry, Motion of pendulum clock, and rotation of the earth on its axis. listen, first let me know the name of that two type. That periodic motion which is representing only the time period.
वो चेक करता है कि दोनों सेम टाइम पे जो पार्टिकल मूव हो रहा है सेम टाइम पे रिपीट हुआ है या नहीं। उसके बाद दो कंडीशंस आ जाते हैं। दो कंडीशंस को एक्सप्लेन करने के लिए वी रिक्वायर्ड टू अनदर टॉपिक। फर्स्ट, रोटेशनल पीरियोडिक मोशन एंड सेकंड, वाइब्रेशनल पीरियोडिक मोशन। सुना आप लोगों ने? फर्स्ट, रोटेशनल पीरियोडिक मोशन एंड सेकंड, वाइब्रेशनल पीरियोडिक मोशन। रोटेशनल पीरियोडिक मोशन क्या था? Rotational motion of a body which repeats itself in equal interval of time with a constant angular velocity is called rotational periodic motion. बाकियों ने सुना? बाकियों ने सुना क्या था डेफिनेशन? लेट मी नो एवरीवन द डेफिनेशन ऑफ रोटेशनल पीरियोडिक मोशन। ये सारे एक एक पॉइंट हुए हैं साउंड वेव में। और गाइस याद रखना, ऑसिलेशन का पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में। इट कंज्यूम्स 5 to 7 मार्क्स। ऑसिलेशन के बाद जो पीरियोडिक मोशन का कॉन्सेप्ट है, पीरियोडिक मोशन सिर्फ और सिर्फ वहां पे टाइम मेजर करता है कि जो पार्टिकल है वो सेम टाइम पे रिपीट हुआ है या नहीं। आफ्टर दैट वी हैड द रोटेशनल पीरियोडिक मोशन। रोटेशनल पीरियोडिक मोशन चेक करता है कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है या नहीं। सपोज if the particle which should be repeating itself after a equal interval of time and if it does not having the constant speed, तो वो अपने आप को सेम टाइम पे रिपीट नहीं कर पाएगा। याद रखना ये बात। अपने आप को अगर वो रिपीट कर रहा है इसका मतलब ये क्लियर है कि उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। तो रोटेशनल पीरियोडिक मोशन सिर्फ और सिर्फ स्पीड पे कंसंट्रेट करता है। वो बोलता है कि जो पार्टिकल रिपीट हो रहा है उसका स्पीड कांस्टेंट है। तो डेफिनेशन भी उसके अकॉर्डिंग होगा, सेम डेफिनेशन है। द पार्टिकल विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर ए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। रिमेंबर इट एवरीवन, इट इज द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। रोटेशनल पीरियोडिक मोशन में कांस्टेंट स्पीड मेंशन करना जरूरी है, ये बात याद रखना आप लोग। रोटेशनल पीरियोडिक मोशन के बाद वी हैविंग द वाइब्रेशनल पीरियोडिक मोशन। व्हाट वाज दैट? Vibratory motions and which a particle repeats its to and fro motion. Sir, fro मतलब? फ्रो का मतलब Sir. लिसन, टू एंड फ्रो का मतलब आगे पीछे। टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे पीछे। Motion along the same path in equal interval of time is called vibrational periodic motion. व्हाट्स योर नेम? Varun. वरुण। वरुण, मैंने जो पीडीएफ भेजा है ना, बाद में रेफर करने के लिए भेजा है, ठीक है? सर तो कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है ना, चलेगा ना? सुनाई दे रहा है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। दैट इज नॉट अ डेरिवेशन पार्ट ना। कुछ फर्क नहीं पड़ता है, डेफिनेशंस हैं, वो डेफिनेशंस बाद में रेफर करने हैं, ठीक है? आपको क्या पता है, लेट मी नो दैट थिंग। डेफिनेशन देख के बोलोगे तो कैसे समझेगा? वो पीडीएफ बाद में रेफर कर लेना। अभी बताओ मुझे, पीरियोडिक वाइब्रेशनल पीरियोडिक मोशन में क्या होता है? जैसे पीरियोडिक मोशन में टाइम के बारे में बात चल रही थी, वो टाइम मेजर कर Vibrations. vibrations. What do you mean by vibrations? And what is the difference between the oscillation and vibration? देखो सबको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है यहाँ पे? व्हाइट बोर्ड दिखा सबको? हाँ। ओके ओके गाइस, देखो यहाँ पे सपोज कि हम लोग एक पेंडुलम यहाँ पे बना ले रहे हैं, ओके?
that is our rigid body. अब यहाँ पे that is our bob. It's a point P. That is a point Q. If we took that bob from here, P से अगर रिलीज करूँ तो ये ट्रैवल करके P से Q तक आएगा और Q से P तक जाएगा. इसी को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेशन. The movement of a particle again and again, the one such set of the movement is known as the oscillation. So can you know me? In one such set, how many amplitudes we have? वरुण, amplitude का definition क्या था? Amplitude का definition क्या है? एक second. It's our mean position. Huh? O is our mean position. P is our positive extreme position. And Q is our negative extreme position. एम्पलीट्यूड का मतलब हाइट होता है, एल्टीट्यूड भी कहते हैं उसे. Anyone? What is the definition of amplitude? Height. Maximum displacement of a particle from its mean position. आवाज आ रही है? एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स mean position. वरुण, हाँ सर. क्या था डेफिनेशन? Maximum displacement Of a particle from its of a mean position. particle From its mean position. मेन पोजीशन से जो हाइट जनरेट होती है उसे हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं. तो डेफिनेशन है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन. वन सच सेट का मतलब समझ में आया आप लोगों को? पार्टिकल को जहां से रिलीज किया था, जब पार्टिकल ट्रैवल करके उसी जगह पे आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड द वन सच सेट ऑफ ऑसिलेशन. अब चेक करो यहाँ पे कि कितने एम्पलीट्यूड जनरेट हो रहे हैं. कितने? सर 2. दो. हाँ सर. 3. सर 2. चुप. कैसे 2 और 3? एक्सप्लेन करो उसे. सर अटक रहा है. वरुण, सॉरी वरुण सॉरी की सर. आवाज क्लियर हो रही है. यहाँ पे डिस्टर्ब है सर. लिसन एवरीवन. हेलो. अभी गाइस वन सच सेट ऑफ ऑसिलेशन, ओ से लेके पी तक एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है और ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है. तो अगर ओ से पी तक का डिस्टेंस चेक करें, सबसे पहले हम लोग पी से पॉइंट को रिलीज कर रहे हैं, बॉब को रिलीज कर रहे हैं, तो पी से लेके ओ तक एक एम्पलीट्यूड जनरेट हो जाता है. तो एक एम्पलीट्यूड यहाँ पे है. देन ओ से क्यू पे गया, so here we have amplitude. फिर Q से O पे आया. Again here we have it. Then O से P पे गया. Here we are having one amplitude. In one oscillation we are having a 4 amplitude, everyone. In one oscillation we have 4 amplitude.
लिख के रखो, नीट में आता है कभी कभी ये। कैसे सर? सर कैसे? देखो मैंने यहाँ पे 4 एम्पलीट्यूड ड्रॉ कर रखे हैं। हाँ तो सर हाँ ए से ओ और आपने बोला ओ से क्यू, तो ये तो 2 बार हो गया ना। हम लोगों ने रिलीज किया है, बॉब को कहाँ से रिलीज किया था? पी से। पी से, तो पी से कहाँ पे जाएगा वो? पहले ओ पे। ओ। एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन क्या है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो ओ से लेके पी तक का एक एम्पलीट्यूड, फिर लेके क्यू तक दूसरा एम्पलीट्यूड। तो पार्टिकल अपने आप को रिपीट करेगा ना, तो क्यू से ओ तीसरा एम्पलीट्यूड और ओ से पी चौथा एम्पलीट्यूड। डायग्राम बना के रखो एवरीवन, सब लोग। सर फिर बाद में वापस वो नीचे आएगा ना? नहीं, मैंने सिर्फ एक सेट के बारे में बात की है वरुण। ऑसिलेशन का डेफिनेशन, द मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल अगेन एंड अगेन, वन सच सेट ऑफ द मूवमेंट। और वन सच सेट का मतलब है पार्टिकल जहां से ट्रैवल कर रहा था वापस उसी जगह पे आ जाए, बस। पी सेट छोड़ा था हम लोगों ने, तो वो ट्रैवल करके वापस जब पी पे रुक जाएगा तो वो एक सेट कंप्लीट कर दिया है, वो सेट को ही हम लोग कहते हैं ऑसिलेशन। तो उसमें 4 एम्पलीट्यूड क्रिएट हो गई है। इज दैट क्लियर? यस। एमसीक्यूज क्वेश्चन है ये, याद रख लो सब लोग। आई रिपीट एवरीवन, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेशन के कंडीशन के बाद पीरियोडिक मोशन था। मतलब जो पार्टिकल ट्रैवल किया है, जो अपने आप रिपीट किया है, उसका टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए। पीरियोडिक मोशन उसे एक्सप्लेन कर रहा था। रोटेशनल पीरियोडिक मोशन, रोटेशनल पीरियोडिक मोशन बोलता है रिपीट होने के टाइम पे जो स्पीड थी वो कांस्टेंट थी। वाइब्रेशनल पीरियोडिक मोशन, वाइब्रेशनल पीरियोडिक मोशन बोलता है कि जो पार्टिकल है, द मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल, इसका जो पाथ है वो सेम होना चाहिए। द पार्टिकल विच रिपीट्स टू एंड फ्रो along the same path in equal interval of time. I repeat everyone, the particle which repeats to and fro along the same path in equal interval of time. जो पार्टिकल है वो सेम पाथ पे अपने आप को रिपीट करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। याद रखना, वाइब्रेशनल पीरियोडिक मोशन पाथ पे फोकस कर रहा है, मतलब वो पाथ के बारे में बताता है। अगर पाथ सेम होगा तो पार्टिकल अपने आप को सेम टाइम पे रिपीट करेगा। अगर पाथ सेम नहीं होगा तो पार्टिकल अपने आप को सेम टाइम पे रिपीट नहीं करेगा। याद रखना आप लोग, मतलब ये सारे के सारे पॉइंट ऑसिलेशन से लिंक है। पीरियोडिक मोशन टाइम को फोकस कर रहा था, अगर टाइम सेम नहीं होगा तो ऑसिलेशन नहीं होगा। रोटेशनल पीरियोडिक मोशन स्पीड को चेक करता है, वो बोलता है अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा तो पार्टिकल सेम टाइम पे रिपीट नहीं होगा। सेम टाइम पे रिपीट नहीं होगा मतलब ऑसिलेशन नहीं होगा। तो रोटेशनल पीरियोडिक मोशन स्पीड को चेक कर रहा था, स्पीड के बारे में उसने बताया कि दैट स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हिच शुड बी अ कांस्टेंट व्हेन इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ। आफ्टर दैट वी आर हैविंग अ वाइब्रेशनल पीरियोडिक मोशन। इन वाइब्रेशनल पीरियोडिक मोशन, वाइब्रेशनल पीरियोडिक मोशन में हम लोग मेजर कर रहे थे द पार्टिकल व्हिच इज रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट पाथ शुड बी अ सेम। जो पार्टिकल वाइब्रेट हो रही है उसका पाथ सेम है, वो किसी डिफरेंट पाथ पे अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, उसका पाथ सेम है। ये बात याद रखना गाइस। इन वाइब्रेशनल पीरियोडिक मोशन दैट पार्टिकल व्हिच इज हैविंग अ सेम पाथ, इज दैट क्लियर वन? वरुण, हाँ सर। Yes, sir. पाथ सेम होना चाहिए, याद रखना ये बात। सिंपल सिंपल से पॉइंट है, एक एक पॉइंट अपने दिमाग में रख लो। ऑसिलेशन मतलब मोमेंट ऑफ अ पार्टिकल अगेन एंड अगेन वन सच सेट ऑफ द मोमेंट इज नोन एज ऑसिलेशन। पीरियोडिक मोशन की बात हुई तो समझ जाना, ये जो पार्टिकल रिपीट हो रहा है इसका टाइम सेम होना चाहिए, टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए। तीसरा, रोटेशनल पीरियोडिक मोशन स्पीड को चेक करता है कि स्पीड कांस्टेंट है या नहीं। वाइब्रेशनल पीरियोडिक मोशन चेक करता है कि पाथ सेम है या नहीं। ये चारों इसी लिंक पे हैं। अब
लोग वापस चेक कर लेते हैं जरा। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। अगेन विल चेक आवर पेंडुलम ओवर here. That is our pendulum. 2 पॉइंट लिया था हम लोगों ने, P and Q। P and Q। अब गाइस इस जगह पे एक सेकेंड, वापस हम लोग अपने पेंडुलम को P से रिलीज करेंगे। P से रिलीज करते ही याद रखना यहाँ पर मीन पोजीशन था, दैट इज अ O। जैसे ही हम लोग पेंडुलम को पॉइंट P से रिलीज करेंगे, तो पॉइंट P से रिलीज करते ही गाइस सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ पर जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो फंक्शंस हैं वो चेक करना है। वरुण, हाँ सर। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या था? नो आइडिया। एनीवन एल्स? सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में कुछ बताया था? अच्छा वरुण, यहाँ पर इतने सारे ऑब्जर्वेशन के बाद क्या लगता है कुछ बचा हुआ है पेंडुलम में मेजर करने के लिए? हम लोगों ने ऑसिलेशन चेक किया, पीरियोडिक मोशन चेक कर लिया, रोटेशनल पीरियोडिक मोशन चेक किया, वाइब्रेशनल पीरियोडिक मोशन चेक किया। कुछ और बचा हुआ है क्या यहाँ पे? Others? Amplitude. We already measured the amplitude. Except the amplitude. But we remain now over here. Sir, frequency of length of pendulum. No. Oscillation chapter पढ़ रहे हो? Velocity, length, frequency. ये सब मेजर करेंगे यहाँ पे। गाइस बहुत ही सिंपल सी बात है, हम लोग ने पेंडुलम को एक पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन के टुवर्ड्स लेके गए हैं, मतलब P डायरेक्शन में। तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग x से डिनोट कर सकते हैं यहाँ पे। द डिस्प्लेसमेंट which is denoted with the x in right hand side। अब गाइस ये जो पार्टिकल P है, मतलब ये जो पेंडुलम है, इस पेंडुलम को हम लोग राइट साइड में लेके जा रहे हैं। और गाइस ये जो बीच में आप लोग एरो रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये नहीं करना है, किसी को भी नहीं करना है। इतना याद रखो कि जो पेंडुलम है, पेंडुलम को हम लोग P डायरेक्शन में लेके गए, मतलब राइट डायरेक्शन में लेके गए। तो पहला पॉइंट, फोर्स which is directly proportional to displacement। अब गाइस यहाँ पर जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट से, तो ये फोर्स कौन सा है वो चेक कर लेते हैं। अब जब हम लोग P से वापस O के टुवर्ड्स जाएंगे, अगर हम लोग किसी पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हैं तो वो वापस अपने मेन पोजीशन के टुवर्ड्स आने की कोशिश करता है, मतलब इस डायरेक्शन में। मतलब ये जो F है इसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं हम लोग। ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है डिस्प्लेसमेंट हुए पार्टिकल को, द पार्टिकल व्हिच इज डिस्प्लेसेस फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, दैट रिस्टोरिंग फोर्स व्हिच शुड बी टुक द पार्टिकल अगेन टू इट्स मेन पोजीशन। मतलब जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो हेल्प करता है पार्टिकल को रिस्टोर होने के लिए, मतलब वापस मेन पोजीशन पे आने के लिए। बात याद रखना गाइस, मतलब अगर हम लोग पार्टिकल को P से रिलीज करना चाहते हैं तो पार्टिकल को डिस्प्लेस करके हम लोग P तक लेके जाते हैं। तो P तक लेके जाएंगे तो वहां पे एक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो जाएगा,
जैसे हम लोग उसे रिलीज करते हैं तो वो ओ के टूवर्ड्स आता है, ओ के टूवर्ड्स आता है, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स उसको मेन पोजीशन पे लेके आ रहा है, मतलब एफ है। अब वो रुकेगा तो है नहीं, क्योंकि उसके अंदर कुछ अनबैलेंस्ड फोर्स हम लोगों ने अप्लाई किया है, तो जो पार्टिकल है वो ओ से क्यू की तरफ बढ़ जाएगा, मतलब अब डिस्प्लेसमेंट एक्स के टूवर्ड्स, क्यू के टूवर्ड्स गया है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में है। तो यहाँ से जो भी रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो क्यू से ओ की तरफ पे होगा, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर क्यू से ओ के टूवर्ड्स आने के लिए शो करेगा। मतलब यहाँ पे जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट से। एंड आई होप आप लोगों को नेगेटिव साइन के बारे में अभी तक समझ में आ गया होगा। वरुण, वरुण नेगेटिव साइन के बारे में समझ में आया क्या? नहीं सर, नहीं वरुण, सर। हाँ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन चेक करो। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में दिखाई देते हैं? अपोजिट से। तो नेगेटिव साइन क्या शो करता है? नेगेटिव साइन क्या शो करेगा यहाँ पे? opposite direction. बिटवीन वर्ड Force and displacement आर इन अपोजिट डायरेक्शन। याद रखो सब लोग, दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दे बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेंगे। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का पहला पॉइंट था गाइस, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जो भी फोर्स है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और ये नेगेटिव साइन वही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया सिंपल हार्मोनिक मोशन का। अब दूसरा पॉइंट है कि सर ये अगर मैं नेगेटिव वाला नहीं समझा, कौन सा? ये माइनस साइन वाला सर। माइनस साइन वाला, व्हाट्स नेम? फीफा सर। लिसन, नेगेटिव डायरेक्शन मैंने ऊपर डायग्राम बना के रखा हुआ दिखाई दे रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। यस सर। क्या दिख रहा है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के एरोज में कुछ अपोजिट साइन दिख रहा है आपको? यस सर। डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में जा रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स लेफ्ट में आ रहा है, यस। और अगर डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में जा रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स राइट में आ रहा है। यस सर। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से कौन से डायरेक्शन में है? ऑपोजिट। तो नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा? ऑपोजिट। किसके बीच में? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? हाँ सर। तो गाइज ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का पहला पॉइंट है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। दूसरा पॉइंट, दैट फोर्स व्हिच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स टू इट्स मेन पोजीशन। अगर हम लोग पार्टिकल को पी से रिलीज कर रहे थे तो वो ओ के टुवर्ड्स आने की कोशिश कर रहा था, और जब वो क्यू पे था तो वापस वो ओ के टुवर्ड्स आने की कोशिश कर रहा है। तो गाइज यहाँ पर जो भी फोर्स है वो हमेशा अपने मेन पोजीशन के टुवर्ड्स आने की कोशिश करता है, ये बात याद रखना। मतलब जब भी हम लोग पार्टिकल को रिलीज करते हैं कहीं से भी तो वापस वो अपने मेन पोजीशन के टुवर्ड्स आता है। कुछ देर तक वो ऑसिलेट होता रहता है क्योंकि उसके अंदर हमारा अप्लाई किया हुआ अनबैलेंस्ड फोर्स है, लेकिन कुछ देर के बाद जब वो फोर्स खत्म हो जाएगा तो पार्टिकल मेन पोजीशन पे आकर रुक जाएगा। मतलब दैट फोर्स व्हिच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स टू इट्स मेन पोजीशन। ये दो ऑब्जर्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है ऑसिलेशन नाम के चैप्टर में। दो ऑब्जर्वेशन, द फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट and always directed towards to its mean position. Is that clear everyone? वरुण, yes sir. समझ में आया? यस सर। सिंपल हार्मोनिक मोशन जब भी आप लोगों से पूछा जाएगा तो दो पॉइंट सिंपली दिमाग में रखना, दैट फोर्स व्हिच इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मीन, ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट and attracted towards to its mean position simply.
जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन पॉइंट आएगा ये दो पॉइंट आपके दिमाग में क्लिक हो जाने चाहिए. And remember it, that force which is directly proportional to displacement and force and displacement they always opposite in a direction. ये दोनों हमेशा opposite direction में होते हैं. ये बात आप लोग याद रखना. क्लियर हुआ पॉइंट? अब गाइज अगर इसका कंप्लीट स्टेटमेंट आप लोगों को लिखना है तो कंप्लीट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? जैसे कि वाइब्रेशनल पीरियोडिक मोशन था, तो वाइब्रेशनल पीरियोडिक मोशन में हम लोग एग्जैक्टली क्या कर रहे थे कि जो भी डेफिनेशन था, द पार्टिकल which repeats to and fro along the same path in equal interval of time, the magnitude of force which is directly proportional to displacement and it is always directed towards to its mean position. मतलब आप लोग वाइब्रेशनल पीरियोडिक मोशन का पूरा डेफिनेशन लिख देना. पूरा डेफिनेशन लिखने के बाद ये दो पॉइंट लिख देना, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स टू इट्स मेन पोजीशन. समझ में आया पॉइंट? हाँ सर. पॉइंट समझ किस तरीके से लिखना है समझ में आया? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन. गाइस देखो सिंपल से डेफिनेशन है. अगर हम लोग शुरुआत कर ले ऑसिलेशन से, तो ऑसिलेशन में सिंपली याद रखना है कि पार्टिकल रिपीट करता है. ऑसिलेशन को हम लोग टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं. और अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछेगा तो बता देना पार्टिकल सेम टाइम पे अपने आप को रिपीट करता है. या फिर अगर कंप्लीट वे में डेफिनेशन देना है तो लिख देना मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल अगेन एंड अगेन, वन सच सेट ऑफ द मूवमेंट इज नोन एज ऑसिलेशन. पीरियोडिक मोशन सेम टाइम पे रिपीट करता है, रोटेशनल कांस्टेंट होता है, वाइब्रेशनल पाथ सेम होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स टू इट्स मेन पोजीशन. ये सिंपल से लिंक है जिससे डेफिनेशन याद रखा जाता है. अब गाइस ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसके दो टाइप है, एक लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन और दूसरा है एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन. लीनियर एसएचएम एंड एंगुलर एसएचएम. So let me know what do you mean by the linear SHM and the angular SHM. Asifa. लीनियर SHM क्या है और एंगुलर SHM क्या है? वरुण. हाँ सर. लीनियर SHM, एंगुलर SHM. Linear means what? Straight line, sir. Straight line. What about the angular? Forms an angle. Angle. मतलब straight path है angular path. Yes, Curve sir. path. तो linear SHM, angular SHM. SHM की जहां पर बात आ जाती है वो ऑसिलेशन से बिलोंग करता है. तो मतलब linear SHM में the particle should be oscillating on a straight path. जो भी पार्टिकल है वो स्ट्रेट पाथ पे ऑसिलेट होगा. और अगर हम लोग एंगुलर एसएचएम की बात करेंगे तो एंगुलर एसएचएम में द पार्टिकल शुड बी ऑसिलेटिंग ऑन अ कर्व पाथ. समझ में आया? Yes, sir. इन लीनियर एसएचएम द पार्टिकल शुड बी ऑसिलेटिंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ एंड इन एंगुलर एसएचएम द पार्टिकल शुड बी ऑसिलेटिंग ऑन अ कर्व पाथ. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Okay. Let me know the example of the linear SHM. Any common example of it? जो पार्टिकल अपने आप को स्ट्रेट पाथ पे ऑसिलेट करता हो और अपने आप को सेम टाइम पे रिपीट करता हो. Fan, sir. Fan. No. A The block, particle. sir, a block tied with a spring. A block pad with a spring. तो मैं एग्जांपल क्या समझूं, पैड का या स्प्रिंग का? I want an example of a straight path only.
सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करो ना। एग्जाम्पल ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। डेफिनेशन है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का, द पार्टिकल शुड बी ऑसिलेटिंग ऑन अ स्ट्रेट Needle. Needle. निडल, ओनली निडल। Of a sewing machine. यस, जो सिलाई मशीन है उसका जो निडल है, that needle which should be oscillating on a straight path and which is repeating itself after an equal interval of time. Okay, another one. कोई दूसरा एग्जांपल? Sir, pendulum. Curve के लिए. Except pendulum. First, let me know the example of straight path only. Let me know the example of straight path only. Sir, खोदने की मशीन. Drilling machine. Drilling machine. है ना? हाँ. That drilling machine आपने देखा होगा जब भी रोड को ड्रिल करते रहते हैं. So that is also example of linear SHM. After that we having a spring. That spring which is also representing the example of a linear simple harmonic motion. These all are an example of the linear simple harmonic motion where the particle which should be oscillating on a straight path. किसे वॉइस क्लियर नहीं हो रही है? अभी आ रही है मेरी आवाज? आवाज आ रही है? ओके गाइस, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल को स्ट्रेट पाथ पे ऑसिलेट करना है. तो पार्टिकल को अगर स्ट्रेट पाथ पे ऑसिलेट होना है तो उसके कुछ एग्जांपल्स देखने होंगे. तो उसके एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे वो सिलाई मशीन है, उसके अंदर का जो निडल है वो निडल स्ट्रेट पाथ पे ऑसिलेट होता है. सिमिलरली स्प्रिंग है, स्प्रिंग के बाद रोड ड्रिलर मशीन है. ये सारी चीजें, सॉरी झूला, नो, पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पे ऑसिलेट, झूला स्ट्रेट पाथ पे ऑसिलेट नहीं होता, ये बात याद रखो. एंड विच इज मेकिंग द कर्व पाथ. एंड हियर वी रिक्वायर्ड an example that particle should be moving on a straight path, either the curve path. Remember it. जैसे अभी किसी ने एग्जांपल लिया था फैन का, so that fan which is creating a curve path, not it should be oscillating on a curve path. पार्टिकल कर्व पाथ पे घूमना चाहिए, ना कि कर्व पाथ बनाना चाहिए, ये बात याद रखो. ओके, नाउ लेट मी नो द Sir, fan एग्जांपल ऑफ. include नहीं होता है? No, that fan which is creating a curve path, Varun, which is not oscillating on a curve path. तो सर अभी अभिषेक ने झूला का बोला, झूला भी तो पेंडुलम नहीं. जैसा है. झूला पेंडुलम जैसा है, but which is not repeating itself ना. In oscillation, I was told you that oscillation तभी exist होगा when the particle which is repeating itself after equal interval of time. और वो जो झूला है वो अभी अपने आप को सेम टाइम के कभी भी रिपीट नहीं करता. हाँ सर. Now let me know the example of angular SHM. आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Okay, let me know the example of angular SHM. Sir, wall of death. Sorry, wall of Death. death? No, हाँ. that is the example of circular motion. सर्कुलर मोशन का एग्जांपल था कि पार्टिकल कर्व पाथ पे घूमना चाहिए. हाँ सर. लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि दैट पार्टिकल व्हिच इज नीड टू बी रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. देखो जैसे निडल लिया था, अगर निडल स्ट्रेट पाथ पे है
और अगर वो सेम टाइम पे रिपीट नहीं करता तो हमारे जो क्लोथ्स पे स्टिचेस लगे हुए हैं वो कभी भी सेम नहीं होते, तो क्या कपड़े पहनने लायक होते? क्या कपड़े पहनने लायक नहीं होते, क्योंकि स्टिचेस कहीं पे छोटे कहीं पे बड़े हैं, बेकार लगता। मतलब वो सेम टाइम पे रिपीट कर रहा था ना। हाँ तो सेम कंडीशन वही है। इन एंगुलर एसएचएम the particle which is need to be oscillating in a curved path and it has to be repeat itself after equal interval of time. तो कुछ ऐसा एग्जांपल बताओ जो एंगुलर एसएचएम में एग्जिस्ट होता हो। सर आप बता दो। अरे अर्थ विच इज मूविंग अराउंड द सन, मून विच इज मूविंग अराउंड द अर्थ, इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। पढ़ा है सबके बारे में? हाँ सर। हाँ सर। सेम टाइम पे ही रिपीट करता है ना। हमारा जैसे अर्थ है, हमारे ऑर्बिट में रोटेट होने के लिए इट विल टेक द 24 आवर्स, और हर दिन तो सेम होते हैं, हर दिन में 24 आवर्स सेम होते हैं। मतलब पार्टिकल अपने आप को सेम टाइम पे रिपीट कर रहा है और कब पाथ पे भी घूम रहा है। सेम कंडीशन हमारे मून का भी है और सेम कंडीशन हमारे इलेक्ट्रॉन्स का भी है ना। और एक और एग्जांपल है हमारा पेंडुलम। पेंडुलम भी लगभग इसी फॉर्मेट पे चलता है। वॉच। नो, वॉच भी नहीं। मैंने पहले ही क्लियर किया था, जो पार्टिकल है वो कर्व पाथ बनाना नहीं चाहिए, कर्व पाथ पे घूमना चाहिए। सुना आपने? वॉच, फैन, ये सारी चीजें नहीं आती हैं। कौन सी चीजें आती हैं? जैसे अर्थ हो गया, मून हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये सारी चीजें आती हैं जो कर्व पाथ पे घूमते भी हैं और अपने आप को सेम टाइम पे रिपीट भी करते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट ये पूरा? यस सर। Yes, sir. लीनियर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम क्या होता है और कैसे इसके एग्जांपल हो सकते हैं? Yes, sir. ओके, अब गाइस ये पूरे टर्म को एक बार अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेते हैं ताकि सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आए। सबसे पहला ऑसिलेशन। क्या था ऑसिलेशन? Movement of a particle. हसीफा, लेट मी नो योर डेफिनेशन। और वो कहाँ पे है वो चर्च वाली, क्या नाम था उसका? कैरन। Karen. Karen, let me know the definition of it. What do you mean by the oscillation? She is there or not? Varun. हाँ सर। Varun, let me know the definition of oscillation. PDF नहीं देख के बोलना है। हाँ सर, moment of a particle again and again. The movement of a particle again and again. Again and One again. such set of a movement is known as oscillation. What do you mean by the one such set? One such set का मतलब सर क्या होता है? अपने जगह पे वापस आके रुकना। Sorry? अपनी जगह पे वापस आके रुकना। Yes, yes. Good, good. In one such set, how many amplitudes we have over there? 4. 4. 4. After that, what do you mean by the periodic motion? Simply मुझे ये बताओ कि periodic motion में ऑब्जर्व क्या करते हैं? Time interval. time. मतलब पार्टिकल अपने आप को सेम टाइम पे रिपीट करना चाहिए। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस। अब गाइस सेम डेफिनेशन रोटेशनल पीरियोडिक मोशन में भी सेम डेफिनेशन लिखना है, खाली लास्ट में ऐड कर देना है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, बस। ओके सर। सिर्फ सेम डेफिनेशन है रोटेशनल पीरियोडिक मोशन का जो डेफिनेशन था सेम। द पार्टिकल और वाइब्रेशन। the particle which repeats itself after an equal interval of time with constant angular speed. ये रोटेशनल पीरियोडिक मोशन का डेफिनेशन होगी। इज दैट क्लियर?
Yes, sir. सिंपली दिमाग में रखना कि यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट होगी. आफ्टर दैट व्हाट अबाउट द वाइब्रेशनल पीरियोडिक मोशन? Same time in same path में same time लगता है. सेम सर पाथ पे Same time, equal interval of time in equal path. गाइस यहाँ पे सिंपली ये समझ के रखना है, द पाथ शुड बी अ सेम. When the particle which is repeating itself, which path will remain the same? Simply याद सर रखना है कि सर इसको वाइब्रेशनल नाम क्यों दिया? वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन दे बोथ आर अ सेम थिंग. ऑसिलेशन बड़े पार्टिकल्स को बोला जाता है जो अपने आप को सेम टाइम पे रिपीट करते हैं, और वाइब्रेशन वेव के पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं. जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं ना, जब वो अपने आप को सेम टाइम पे रिपीट करते हैं तो उन्हें वाइब्रेशन कहा जाता है. दोनों का मीनिंग सेम है. ऑसिलेशन बड़े पार्टिकल्स के लिए हो गया, बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए हो गया, बड़ी बॉडीज के लिए हो गया, और वाइब्रेशन छोटे पार्टिकल्स के लिए है. तो वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन दे बोथ आर अ सेम थिंग. इज दैट क्लियर? Yes, sir. याद रखना, जैसा ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट होगा, सेम कॉन्सेप्ट सुपरपोजिशन चैप्टर का भी होगा. सुपरपोजिशन में भी सारी की सारी चीजें सेम होंगी. Okay, sir. समझ में आए पूरे कंडीशन? एंड व्हाट अबाउट द Yes. SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन? Force and displacement are directly proportional to each other. Okay, what about the second point? They are directed They are directed towards opposite the in direction. Force which is directly proportional to displacement and always directed towards its main position. Yes, sir. Okay. Force and displacement are opposite in direction. Yes. कितने टाइप हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के? Two types: कौन कौन से? linear and angular. Angular. Linear SHM and angular SHM. Linear SHM में क्या होता है? Particle oscillate in a straight path. और angular SHM में Straight path. It is Curve. oscillated towards Particle oscillate in Curve. okay. What is the definition of amplitude? height of the particle from their origin. बोल सकते हैं? Maximum displacement of a particle to displacement of a particle. position. Yes, maximum displacement of a particle from its main position. समझा सबको? Yes. Yeah. Yes, sir. सारे पॉइंट्स गाइस मैंने पीडीएफ भेज रखा हुआ है, तो अभी आप लोग एक काम करोगे, एक सेपरेट नोटबुक बना लेना और अपने नोट्स प्रिपेयर करते चले जाना. Okay. Yes, sir. जितने भी पीडीएफ के आज जितने भी डेफिनेशंस हुए हैं सारे लिख लेना, अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहना. नेक्स्ट लेक्चर से विल स्टार्ट द डेरिवेशन एवरीवन. Yes, sir. समझे? Okay, sir. ओके, सर आपका तो स्क्रीन ही ऑन नहीं हो रहा है. कुछ फर्क नहीं पड़ता. सुनाई दे रहा है? हाँ सर. Yes. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अभी मैंने कुछ लिख नहीं रहा हूँ तो क्या जरूरत है स्क्रीन की? जब लिखूंगा, जब डेरिवेशंस लिखेंगे तब दिखाई देगा स्क्रीन. ठीक है? Okay, sir. Yes, ओके, लीव एवरीवन. एंड मोहन गुप्ता आप रुकोगे, बाकी सारे जा सकते. लीव. So, मोहन गुप्ता इज यू? no, so Sanket Tiwari is. संकेत जी, जी. मोहन गुप्ता नाम का कौन सा स्टूडेंट है ये? So he है अभी वो? seems to have left already. You already left? Yeah. Okay. I'll tell him to call you, sir, or something.
हाँ मुझे बात करनी थी उससे। ठीक है, मैं बात करवा देता हूँ उससे। ठीक है। Thank you. Should I leave? Should I Yes, leave the group? yeah, done.